آج مسلم سوسائٹی اور مسلم جو ماں باپ ہے ان کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کی نگرانی کرو، دیکھو کہاں جا رہے، کیا کر رہے، کس سے دوستی ہے، کیا استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کا خیال رکھو۔ لیکن باپ خود اس کے ڈبل نشے میں چور ہے تو بیٹے کا کیا حال ہوگا، بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ سب سے پہلے آپ صحیح ہو جاؤ۔ آپ بیڑی پان پرا گٹکا سگریٹ زردہ کے عادی ہیں اور آپ سوچے کہ میرا بیٹا نہ بنے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ باپ کو دیکھ کر آپ گالی گلوچ کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میرا بیٹا گالی گلوچ نہ کرے، آپ بیوی کو مارتے ہو اور میاں بیوی کے ہمیشہ جھگڑے رہتے ہیں، آپ سوچتے ہو کہ میرے بیٹے آپس میں جھگڑا نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھو آپ کو دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں۔ آپ راتوں رات تک موبائل دیکھتے ہو اور بچوں کو کہتے ہو موبائل استعمال نہیں کرنا، ہو نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیے آپ دیر رات تک جاگتے ہو، دیر رات گھر آتے ہو اور بچوں کو کہتے ہو کہ جلدی آ جانا، جلدی سو جانا، ہو نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھو آپ پہلے اس کی عادی بنا کرو، آپ عادی بنا کرو۔ گھر کے جو نگران ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار، ماں ذمہ دار، بھائی ذمہ دار، پڑوسی ذمہ دار، حاکم ذمہ دار، محکوم ذمہ دار، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تم نے یہ ذمہ داری ادا کی یا نہیں، تم نے یہ ذمہ داری نبھائی کہ نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی مشہور و معروف آیت نمبر 3 پڑھی ہے،
اور اسی طرح سے سورۃ التوبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی خصوصیت کا تذکرہ فرمایا، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو اور کسی نبی کو اور کسی شریعت کو عطا نہیں کیا، اور وہ ہے تکمیل شریعت، تکمیل دین، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان اور شریعت اور دین کے مکمل ہونے کا اعلان. اللہ تعالیٰ نے کسی شریعت اور کسی دین کے بارے میں کسی نبی کو یہ پیغام نہیں دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے، ایک ہی حج جس کو الوداعی حج کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں تھے اور آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اتمام بھی ہے، اکمال بھی ہے، کمپلیٹ ہے یہ ہر اعتبار سے، اور اللہ نے اس سے رضامندی کا اعلان بھی کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب یہاں پر ساری باتیں ختم ہو گئی کہ دین کون سا چلے گا، شریعت کون سی چلے گی، مکمل کون سی شریعت ہے اور مکمل کون سا دین ہے. یہاں پر صاف ظاہر ہو چکی ہے کس کو ماننا ہے، کس کو فالو کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ پر وضاحت فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرے، ڈھونڈے اور اس کو ذریعہ نجات تصور کریں، اس سے قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں، مِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے ہیں، وہ انسان میں سے ہیں، مگر انسانوں میں وہ رسول ہیں، انسانوں میں وہ افضل ہیں، وہ خیر البشر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، مگر اصلیت ان کی انسان ہی ہے. من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو تکلیف تم برداشت کرتے ہو نبی کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمہاری ہدایت، تمہاری نجات، تمہارے جنت کے داخلے کے بڑے حریص ہیں اور مومنوں کے حق میں بڑے مشفق، رحیم اور کریم ہیں. نبی کی یہ شریعت رحیمانہ ہے، مشفقانہ ہے، کریمانہ ہے، شریفانہ ہے، مکمل بھی ہے، کمپلیٹ بھی ہے، احسن بھی ہے، سب سے بیسٹ بھی ہے، اور سب سے بہترین آئیڈیل اور ماڈل آپ کے اندر ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. یہ اللہ نے کسی اور نبی کے بارے میں نہیں کہا ہے. تو اس دین کے بارے میں کمپلیٹ ہونے کا اعلان ہے. اس شریعت اور آخری نبی کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ آخری اور فائنل ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہے، تو آخری جو ہے وہی اپڈیٹڈ ہے. اسی پر ایمان ہونا چاہیے، اسی شریعت پر اور ان کے طریقے کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے آج حجۃ الوداع کا خطبہ، جو کہ ایک عالمی منشور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اور حج کے میدان، حج کے مقام پر آپ نے عرفہ کے میدان میں
इसी तरह से यौमुन नहर में भी आपने खुतबा इरशाद फरमाया। दो खुतबों को जमा करके मैंने आपके सामने अहम चंद बातों को पेश करने की कोशिश की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आलमी खुतबा था, आलमी मंशूर था, अलविदाई खुतबा था, आखिरी आपका पैगाम था, आपके सामने तकरीबन 1 लाख से जायद का मजमा था। साहबा इकराम आपके साथ जो हज किए उस जमाने में, अल्लाह अकबर, और ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा मौजिजा है। उस जमाने से लेकर आज तक सबसे बड़ा मजमा हज का मजमा होता है। उस जमाने में भी उतना बड़ा मजमा कभी नहीं जमा होता था, और आज भी इतना बड़ा मजमा शायद कहीं जमा हो। और इन सब को एट ए टाइम, मैंने बारहा कहा कि मुअज्जिन सिर्फ एक बार कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सारे के सारे, कोई किसी हालत में हो, जिस हालत में हो, सब के सब कतार बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं और एक ही हालत में, एक ही पोजीशन में आ जाते हैं। ये इस्लाम का बहुत बड़ा मौजिजा है मेरे भाइयों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, आपके सामने 1 लाख से जायद का मजमा था। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि लोगों याद रखना, ये आलमी पैगाम है, ये आलमी मैसेज है, हर एक के लिए इसमें पैगाम है, हिकमत है, लेसन है, दर्स है, सबक है। चाहे वो हाकिम हो या महकूम, बड़े हो या छोटे, मर्द हो या औरत, बुजुर्ग हो या बूढ़े हो या जवान, हर एक के लिए, गुलामों के आका, हर एक के लिए अल्लाह ताला के रसूल ने ये पैगाम दिया। और अगर मैं आपको खुलासे के तौर पर कहूं, सारी तालीमात इस्लामी को अगर आप 2 जुमलों में बयान करना चाहें, वो है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह के हुकूक और अल्लाह के बंदों के हुकूक। अल्लाह के हक में सिर्फ एक ही है, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। और अल्लाह के बंदे जो भी हैं, इंसान, जिन्नात, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, सबका फिजा, माहौल, कायनात, जानदार, बेजान, जो भी अल्लाह की मखलूकात है, उन सब का हक अदा किया करो, हर एक का हक दिया करो। और इनको आप और छोटे अंदाज में बयान करना चाहें, वो है अदल। अदल, मैंने इससे पहले भी कहा है कि अदल ये गोया कि सारी तालीमात इस्लामी का खुलासा है। नबी के इस खुतबे में जहां पर हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है और पूरे अदल और इंसाफ के साथ नबी ने ये खुतबा इरशाद फरमाया। आइए ये जो जामे खुतबा है, मैं आपके सामने इसकी चंद झलकियां रखता हूं ताकि आपको पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुतबा इरशाद फरमाया है। पूरी वसाहत करने के लिए वक्त नाकाफी है। हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बुनियाद है तौहीद, ईमान, अकीदा, मनहज और ईमानियत। आपने इस बुनियाद को सबसे पहले दोहराया, क्योंकि अकीदा तौहीद, अल्लाह ने इसी के लिए कायनात को पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ने फरमाया, कायनात इंस जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए, और इबादत जब कहा जाए तौहीद के साथ इबादत मकसूद है। तौहीद के लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा है, और तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने किताबों को नाजिल किया है। अल्लाह तबारक ताला इसी तौहीद के लिए दुनिया को कायम रखा है। तौहीद खत्म, दुनिया खत्म, उस वक्त क़यामत आएगी। नबी ने फरमाया, जब रूए ज़मीन पे कोई अल्लाह कहने वाला, तौहीद वाला नहीं होगा, दुनिया में उस वक्त क़यामत आ जाएगी, दुनिया खत्म। इस तौहीद को अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले मजबूत किया, बयान किया। तौहीद क्या है? तौहीद यह है कि हर तरह की इबादत और बंदगियों को अल्लाह के लिए खालिस करो, सारी इबादतों को अल्लाह के लिए खालिस कर दो। यही तौहीद है कि अल्लाह तबारक ताला का जो हक है वो अल्लाह को दिया करो। यही असल तौहीद है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से खिताब करके फरमाया, लोगों गौर से सुनो, इस्माऊ वऊ, गौर से सुनो, मेरी बातों को याद रखो, अच्छी तरह से तुम सहन नशीन कर लो
اور ضبط ذہن کر لو, اچھی طرح سے تم یاد رکھو, میری باتوں کو کان کھول کے غور سے سنا کرو, کیونکہ یہ عالمی پیغام ہے, آخری پیغام ہے اور جامع پیغام ہے. صحابہ کرام کے توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام دیا, کہا کہ دیکھو وَاعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, یا کہا اتقوا اللہ ربکم, تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, تم اپنے رب کی عبادت و بندگی کرو. وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے, وہ رب جو تمہارے ہر طرح کے بندوبست کرتا ہے, وہ رب جو تمہارے لیے کائنات ارض و سما اور اس کے بیچ کی ہر چیز کو اللہ نے بنائی ہے, وہ رب جو تمہارے لیے ہر طرح کے جینے کا سامان مہیا کیا ہے, اس رب کی تم عبادت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, تم اللہ جو تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کیا کرو, کیونکہ یہی بنیاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا پیغام دیا اور کہا اسی اللہ کا ڈر رکھو. یہ تقوی تمہارے دل میں ہو تو ہر وقت تمہیں یہ خیال رہے گا, کسی کو جواب دینا ہو یا نہ ہو, اللہ کے بارگاہ میں ایک دن جواب دینا پڑے گا. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. انسان ڈرے گا, چوکنا رہے گا, اللہ کا حق بھی ادا کرے گا, اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا. تقوی یہ بنیاد ہے, رأس الامر مخافت اللہ, ہر چیز کی بنیاد ہے تقوی. تقوی تقوی آ جائے تو یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر اعتبار سے کامیاب کر دیں. حضرین, اس کے بعد دوسرا جو پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے صلاۃ. صلاۃ سب سے اہم عبادت ہے یہ صلاۃ. اللہ اکبر. نبی نے اس کے فوراً بعد عقیدہ, منہج, توحید کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ یاد رکھو وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ, تم 5 فرض نماز کی پابندی کیا کرو, 1 مہینہ فرض روزہ رکھا کرو, زکوٰۃ تم ادا کیا کرو. یہ عبادتوں کی بنیاد ہے میرے بھائیوں, عبادتوں کی بنیاد ہے. زکوٰۃ میں اللہ کا حق بھی ہے, اللہ کے بندوں کے غریبوں مسکینوں کے حقوق بھی ہے, ضرورت مندوں کے بھی حقوق اس کے اندر پنہا ہے. اور اسی طرح سے یہ روزے کے ذریعے سے جہاں جسمانی تربیت ہوتی ہے, روحانی تربیت بھی ہوتی ہے. جسمانی روحانی دونوں طرح کی تربیت کا ذریعہ ہے یہ روزہ. اور صلاۃ, اللہ اکبر, کیا کہنا ہے, یہ تو معراج المومنین ہے. اللہ نے سارے احکام دنیا میں نازل فرمائے, لیکن صلاۃ کا حکم دینے کے لیے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا, اور بلانے کے بعد خصوصی تحفہ دیا, خصوصی گفٹ دیا ہے. آپ اللہ کے خصوصی دیدار کے مستحق ہونا چاہتے ہیں, خصوصی ملاقات کے مستحق ہونا چاہتے ہیں, صلاۃ کی پابندی کرو, صلاۃ کی پابندی کرو. اللہ اکبر. نبی نے کیا فرمایا, ایک دم 14ویں کا چاند ہے, ایک دم آب و تاب سے ہیں, صاف و شفاف ہیں. صحابہ کرام سے نبی نے کہا چاند کو تم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہو نا؟ کہا کہ ہاں. کوئی تکلیف ہو رہی ہے دیکھنے میں؟ کہا کہ نہیں. کہ ایسے ہی یاد رکھو تم قیامت کے روز اپنے رب کا دیدار کرو گے, ایک دم صاف شفاف, کوئی تکلیف نہیں. 2 نمازوں کی پابندی کرو, فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کیا کرو, اپنے رب کا دیدار ہوگا. اللہ نے اپنے رسول کو, اپنے حبیب کو صلاۃ کا حکم دینے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے. تم اگر صلاۃ کی پابندی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں قربت دے گا. اسی لیے وہ حدیث ولی میں کیا ہے کہ میری یہ جو ولی ہیں فرائض کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتے ہیں, نوافل کے ذریعے سے میری محبت حاصل کرتے ہیں, اور میری قربت اور محبت کی وجہ سے اللہ اکبر اب وہ جو بھی مانگتا ہے میں ان کی مانگ پوری کرتا ہوں, ان کے اعضاء اور جوارح کی میں حفاظت کرتا ہوں, ان کی میں حفاظت کرتا ہوں, ان کی مانگ کو پورا کر دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اپنی قربت ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا ہے. نماز, اور ایک بات یاد رکھیے, یہ صلاۃ, اللہ اکبر, صلاۃ کے لیے آنے والے کے ہر قدم پہ ثواب ہے, درجات کی بلندگی کا ذریعہ ہے. ساتھ ہی ساتھ وضو بناؤ صلاۃ کے لیے تو سارے گناہ معاف ہے. پھر اسی طرح سے آپ
सलाम फेरने के बाद उस जगह पर बैठे रहो, जब तक अपनी जगह पर बैठे रहते हो फरिश्ते आपके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। अब बताइए, अगर आप नमाज की हालत में ही हो, ये तो नमाज के अलावा की हालतें हैं। हाँ, नमाज के लिए आ रहे हैं, इतना फायदा, नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं, इतना फायदा, नमाज से सलाम फेरने के बाद उस जगह पर बैठे तो इतना फायदा, अगर आप सलात में ही हो कितना फायदा होगा। अल्लाह अकबर। अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसको कहा हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह, कामयाबी के लिए आओ, नमाज के लिए आओ, सलात के लिए आओ, कामयाबी यहां है, कामयाबी यहां है मेरे भाइयों। और बाज़ अहले इल्म ने ये लिखा है, इस्तिदलाल किया है कि जो सलात की पाबंदी नहीं करता है उसकी कोई इबादत, कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं करता है, कोई नेकी कबूल नहीं करता है। हमारे पास तो मौसमी मुसल्लिया और नमाजी होते हैं, वो मौसम के एतबार से, और ख़ास तौर से अभी मुहर्रम के रोज़े गुजरे, 2 दिन फजर में मस्जिद में काफ़ी तादाद में लोग नजर आए, फिर उसके बाद ख़त्म। भाई वो तो नफिल है, नफिल रोजा है, ठीक है, नफिल के बहाने से फर्ज के लिए तो आ गए। आपने 2 दिन पाबंदी की तो क्या सारी जिंदगी पाबंदी नहीं कर सकते हो? अपने दिल को समझाओ, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आप नियत कर लो। याद रखो, जो इरादा करता है, पाबंदी करता है, रात 2 बजे सोकर भी फजर में उठ के आता है, फिर वो सोता है। लेकिन याद रखो, जो इरादा ही नहीं करता है वो 9 बजे सो के भी नहीं उठेगा फजर के लिए। आप याद रखो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि सलात की पाबंदी करें। बातें बहुत और हैं, एक ही चीज को, सलात के बारे में काफी बातें हो सकती थी, लेकिन और भी बातें आपके सामने अर्ज करनी है। हाजरीन, अल्लाह का हक अकीदा, फिर उसके बाद अल्लाह के बुनियादी हक जो इबादत, इनको बयान करने के बाद अब मुआशरे का हक बयान किया कि मुआशरा अमन, सुकून और चैन के साथ कैसे रह सकता है। किसी भी मुआशरे में सुकून, अमन, चैन कैसे हो सकता है। और उसके लिए इस्लाम ने कहा कि देखो, इंसान की 5 चीजें महफूज हो तो इंसान सुकून से रहेगा। अगर उसकी 5 चीजें महफूज नहीं है, वो तिल मिलाएगा, परेशान होगा, चाहे कितना कमजोर क्यों ना हो, बर्दाश्त करते 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 एक दिन वो आपे से बाहर होता है, फिर उसके बाद वो सोचता है अब जो भी हो, मरता क्या ना करता है। बिल्ली को कुत्ता भगाते हुए ले जाता है, आखिरकार जब बिल्ली के सामने भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अब वो शेरनी बन के पलट के हमला करती है। ये सोचती नहीं कि मैं कमजोर हूं या क्या हूं, कहां हूं। अब जीने मरने का मामला होता है। याद रखिए मेरे भाइयों, इसलिए हुकूमतों को चाहिए कानून साजी से पहले ये जो आलमी मंशूर है इसको आप समझो, और गैर मुस्लिम भी कहने पर मजबूर है। हुकूमत करना है तो अबू बकर और उमर जैसी हुकूमत करना चाहिए। ये पैगाम है, ये मैसेज याद रखो मेरे भाइयों। इसलिए आइए नबी ने क्या पैगाम दिया, ये 5 चीजें क्या हैं। इंसान की अकल, इंसान की नस्ल, इंसान की जान, इंसान के माल और इंसान के दीन, ये 5 चीजें महफूज हो। इंसान की जान महफूज हो, और जान महफूज है तो सब कुछ है ना। अगर जान का ही खतरा हो तो परेशान होगा नहीं होगा, तिल मिलाएगा, परेशान होगा, उस मुआशरे में अमन और सुकून नहीं आएगा। जहां इंसान के माल कमाता है सुकून से रहने के लिए, माल ही महफूज ना हो, कमाओ और नाजायज तरीके से यहां वहां उड़ जाए, हड़प हो जाए, इंसान परेशान रहता है। अच्छा खासा माहौल बर्बाद होता है, अच्छी खासी दोस्ती खराब हो जाती है। क्यों? इसी माल के फितने की वजह से। और नबी ने फरमाया हर उम्मत का खास फितना है, और मेरी उम्मत का खास फितना है माल। लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितना तो उम्मती माल। और इसी फितने में बहुत सारे लोग मुब्तला है। फिर इसी तरह से इंसान की अकल, यानी शराब पी लिया, अब क्या क्या करता है। अकल किसी की दुश्मनी और अदावत में इतना पागल हो गया है, जो चाहे करता है। इंतकाम और नफरत के जज्बे में आकर अनाप शनाप करता है। याद रखो, ये अकल ठिकाने पे ना हो तो इंसान बहुत गलत काम कर बैठता है और माशरा तबाह और बर्बाद होता है। फिर इसी तरह से इंसान के दीन महफूज हो, जो दीन जिसको
को वो मानता है, अगर उस दीन पे आंच आए तो इंसान परेशान रहता है। तो ये जो जान, माल, इज्जत, आबरू, नस्ल, अकल और दीन, इन सब को मिलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो लोगों, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम कहुरमति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। याद रखो, आपस में तुम्हारी जान, माल, इज्जत, आबरू, ये तुम्हारे आपस में सब कुछ उसी तरह से हराम है जिस तरह से आज का दिन मोहतरम है, ये आज का महीना मोहतरम है, ये शहर मक्का जैसे मोहतरम है, उसी तरह से तुम्हारी आपस की इज्जत, आबरू, दीन, ईमान भी आपस में ऐसे ही महबूब है, मोहतरम है। इनका पासो लिहाज रखोगे, मुआशरा पुरसुकून रहेगा। इनका अगर पासो लिहाज नहीं है तो मुआशरा पुरसुकून नहीं रहता है। इसीलिए इस्लाम ने कत्ल को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है। कहा कि देखो, खामा में कोई कत्ल करता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक नफ्स, एक मुसलमान नहीं कहा, एक नफ्स का नाहक कत्ल किया, उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया है। और जिसने किसी एक जान को बचा लिया है, सारी इंसानियत को बचा लिया है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम की निगाह में वुजू एक इबादत है। वुजू में पानी बेतहाशा बहाना कबीरा गुनाह है, तो इंसान का खून बहाना कितना बड़ा गुनाह होगा। आपने कभी सोचा है, तसव्वुर किया है? खामाखा में याद रखो, ये कहा कि अगर आपको जरूरत नहीं है, खामाखा में कोई दरख्त भी नहीं काटना है, कोई जानवर भी ज़बा नहीं करना है, जरूरत हो तो ठीक है, बिला वजह नहीं करना है। इस्लाम हर चीज की हिफाजत की तालीम और तरगीब देता है मेरे भाइयों। इनके जरिए से माशरे को फायदा होता है। अकल की हिफाजत के लिए शराब, जुआ, गीबत और इस तरह के वो चीजें जिसकी वजह से इंसान की अकल में पर्दा पड़ जाए, उन सब को हराम करार दिया। और शराब को उम्मुल खबाइस करार दिया है कि ये इंसान इस पर अमल कर ले, यानी इसको इस्तेमाल कर ले, तो अब उसकी अकल ठिकाने पे नहीं, तो वो इंसान ही नहीं है। क्या कर रहा, क्या बोल रहा, उसको पता भी नहीं है। वही लोग, भाई आप नशे में चूर हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैं मत करो, ये आपकी हिफाजत के लिए, आपको बुराई से रोकने के लिए आ रहे हैं, और आप उन्हीं को मार रहे हो क्योंकि आपकी अकल ठिकाने पे नहीं है। गलत है, इस्लामी एतबार से ये गलत है। याद रखो, तुम्हारा बुनियादी अमल भी गलत है, और जो तुम्हें रोकने के लिए जा रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, ये भी गलत है। याद रखो। और आज इस्लामी माशरा, सोसाइटी तबाह है इसी ड्रग्स और मुनशियात के आदी होने की वजह से। नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। कहां कहां पर ये ड्रग्स की आदतें जा रही हैं। स्कूल, छोटे छोटे क्लासों के बच्चे महफूज नहीं है। कॉलेज तो बहुत बड़ी बात हो गई है, क्लब तो बहुत बड़ी बात हो गई है, बार और फुला बातें तो बहुत बड़ी बात हो गई है। स्कूल, प्राइमरी लेवल की स्कूल की बात कर रहा हूं, वहां पर ये चीजें आम हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, यानी 8, 10, 12 साल के बच्चों के अंदर ये लत लग रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उम्मुल खबाइस है, ये बुराइयों की जड़ है। ये यहां तक कि ये इससे हवस को मिटाने के लिए जो चाहे कर गुजरता है, माँ बाप के भी मुकद्दस रिश्ते का भी ख्याल नहीं रखता है, उसको नशा को पूरा करने के लिए माँ बाप को भी मार देता है, पैसा हासिल करने के लिए जो चाहे करता है। हद तो ये है, अपने जिस्म के आज़ा बेच के नशा करता है। जिस्म के आज़ा खून बेचता है, नशा करता है। जिस्म के कोई आज़ू बेच के वो नशा करता है। और ये अल्लाह की जो दी हुई अमानत है, ये जिस्म उसको गलत कामों में इस्तेमाल करता है। अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? आज मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम जो माँ बाप है, उनकी जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों की निगरानी करो। देखो कहां जा रहे, क्या कर रहे, किससे दोस्ती है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनका ख्याल रखो। लेकिन बाप खुद उसके डबल नशे में चूर है, तो बेटे का क्या हाल होगा? बेटे का क्या हाल होगा? सबसे पहले आप सही हो जाओ, आप
बीड़ी पान परा गुटखा सिगरेट जर्दा के आदी हैं और आप सोचे कि मेरा बेटा ना बने, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। बाप को देखकर आप गाली गलौज करते हो और आप कहते हो कि मेरा बेटा गाली गलौज ना करे। आप बीवी को मारते हो और मियां बीवी के हमेशा झगड़े रहते हैं, आप सोचते हो कि मेरे बेटे आपस में झगड़ा ना करे, हो ही नहीं सकता है। याद रखो, आपको देखकर वो सीखते हैं। आप रातों रात तक मोबाइल देखते हो और बच्चों को कहते हो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, हो नहीं सकता है। याद रखिए, आप देर रात तक जागते हो, देर रात घर आते हो और बच्चों को कहते हो कि जल्दी आ जाना, जल्दी सो जाना, हो नहीं सकता है। याद रखो, आप पहले उसकी आदी बना करो, आप आदी बना करो। घर के जो निगरान है, कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक जिम्मेदार है। बाप जिम्मेदार, माँ जिम्मेदार, भाई जिम्मेदार, पड़ोसी जिम्मेदार, हाकिम जिम्मेदार, महकूम जिम्मेदार, हर एक जिम्मेदार है। हर एक को अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, क्या तुमने ये जिम्मेदारी अदा की या नहीं, तुम में ये जिम्मेदारी निभाई कि नहीं। आज माशरा बहुत तबाही की तरफ जा रहा है, नौजवान नस्ल बर्बादी की तरफ जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस नस्ल की हिफाजत कीजिए, अल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमाए। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल से मुतालिक एक चीज सूद के बारे में कहा कि देखो, ज़माने जाहिलियत के सारे सूदी कारोबार और आइंदा भी सारे सूदी कारोबार को मैं हराम करता हूं, क्योंकि ये सूद मुआशरे का नासूर है। इसमें होता है ये पानी के पास जाके जमा होता है, पैसे वाले के पास पैसा और जाता है। सूद में पैसा कौन देता है? मेरे पास 100 रुपया है और मेरी जरूरत 100 ही है, तो मैं सूद पे दूंगा आपको? नहीं दूंगा, मेरी जरूरत पूरी करूंगा। जिसके पास जायद पैसा है, एक्स्ट्रा है, वो देता है सूद पे और फिर एक्स्ट्रा लेता भी है। और लेने वाला जिसको जरूरत है 100 टके की, वो 100 टका लिया, बेचारे की जरूरत है 100 रुपया और 100 रुपया है भी नहीं उसके पास, 100 लिया, फिर 100 110 देना पड़ेगा। जिसके पास 100 एक्स्ट्रा है, फिर 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। जिसके पास 100 है ही नहीं है, 100 भी दे रहा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है। कितना बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों, कितना बड़ा जुल्म है। और माशरे में सूद को खत्म करना चाहते हो, दो ही रास्ता है, दो ही रास्ता है। एक रास्ता यह है कि सदका तो खैरात किया करो। सदका तो हर एक ले नहीं सकते हैं, सदका खैरात हर एक ले नहीं सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, जरूरतमंदों को कर्जा दो। लेकिन कर्जा देने के बाद होता क्या मालूम है? अरबी में कहा जाता है कर्द मिकरादुल मुहब्बा, कर्जा ये मोहब्बत को काटने की कैंची है। लेते वक्त बड़ी मोहब्बत, बड़ी अपनाइयत रहती है, उसके बाद देखो ऐसा पानी पिलाता है जिसकी हद नहीं, चप्पल घिस जाए, पूछते पूछते हलक सूख जाए। उल्टा जो है आपको वो समझाएगा, सबक देगा, दर्स देगा, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं, ये है वो है, मैं भाग गया, चोरी क्या क्या, ये क्या वो क्या, आपको अल्लाह ने नवाजा दिया है, आपके पास क्या कमी है, आप तो ये है वो है, उल्टा आपको सुनाएगा। याद रखो, नबी की हदीस सुन लो, नबी ने फरमाया जो कर्जा लिया और लेने के बाद देता नहीं है, जानबूझ के टाल मटोल करता है, फकद हल्ला इर्दु, उसकी इज्जत हलाल है, उसी इज्जत को उछालो, सरे आम उसको बदनाम कर सकते हो, बता सकते हो फुला आदमी मेरा पैसा लेके नहीं दे रहा है इसलिए कि वो जालिम है, जालिम है। नबी ने फरमाया मतलुल गनी जुल्मुन, वो आदमी जो दे सकता फिर भी नहीं दे रहा है वो जुल्म है, जालिम है, माली जुल्म कर रहा है। याद रखो, अब सोचता है कि मैं कौन सा जुर्म किया, अपना पैसा मेहनत की कमाई उसको कर्जा देके और उसके बाद मुझे सुनना पड़ रहा है। आइंदा से तौबा तौबा किसी को कर्जा नहीं दूंगा। अब इसकी वजह से जो मुस्तहिक है उसका हक भी मारा जाता है। याद रखिए मेरे भाइयों, माशरे से सूद को खत्म करना चाहते हो, ये दो बुनियाद हैं और दोनों हमने आज फरामोश कर दिया है। जाहिर सी बात है, क्या होगा आज सूद के नासोर में माशरा ऐसे तबाह है। याद रखो, शादी करता है नौजवान, शादी के मौके पर अच्छा क्या जबरदस्त शादी करता है, ये जोड़े घोड़े, इतना खाना दावत, ये वो आइटम, लोग क्या ना क्या शादी किया, माशाअल्लाह। शादी एक बार करता धूमधाम से करो, ये गलत है। शादी एक बार क्यों करता हो भाई, हाँ और भी करो, है ना, कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारा फलसफा ही गलत है। और ये जो बड़े धूमधाम से करो ये भी गलत है। नबी ने फरमाया
वो शादी खैर व बरकत वाला है जिसमें सबसे कम खर्चा हो, सबसे कम खर्चा हो। हमारे पास तो जोड़े घोड़े शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रहे हैं, इतने दिनों तक शॉपिंग है, इतने जोड़े घोड़े जेवरात, ये दावत उसको बोलो तो नाराज, वो ना बोलो तो नाराज, और ऐसे डेकोरेशन, डेकोरेशन को क्या बोलता हूं मैं, डेकोरेशन। हाँ, रुका एक रुका 200-250 का है, फजूल है, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। क्यों? अरे मेरी डिग्निटी है, मैं अगर इतने का रुका नहीं छापा तो लोग क्या कहेंगे, लेता फेंकता वहां पर। हाँ? मालदारों के रुका के पैसे से गरीब की बेटी की शादी हो जाएगी, याद रखिए। हाँ, लाखों रुपया सिर्फ रुका में खर्चा करता है, लेकिन वही एक गरीब को 2 रुपया दो, नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों? डेकोरेशन। हाँ, हमारी शान दिखाना है, और शान दिखाते हुए ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, शिर्क, बिदात, खुराफात, रस्म रवाज, ये वो, अम्मा की ये ख्वाहिश, नाना की ये आरज़ू, दादा की वो आरज़ू, उनकी ये है, मैं क्या करूं, उनकी ये मजबूरी, उन्होंने ये फरमाइश की है। सब आप ही को करना है, जवाब आप ही को देना है, जन्म आप ही ने दिया है, इंतजाम आप ही ने किया है, अल्लाह के पास औलाद आप ही ने मांगी है, अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है, अल्लाह आप ही को पूछेगा, आपको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। ये दुनिया के चंटकों के सामान और दुनिया की शोहरत, रंगीनियां, रानैत और दिखावा, इसमें पढ़ के आप आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, याद रखो मेरे भाइयों। लेकिन होता यही है, नबियों ने समझाया और लोगों की आखिरत के सुधार के लिए कोशिश की, और नबियों को अला कि अल्लाह तुहिब्बुन नासिहीन, तुम्हारे खैर खा नासे जो हमदर्द, तुम्हें जन्नत से करीब, जन्नत का रास्ता दिखाने वाले, जहन्नम से रोकने वाले, उन्हीं को तुम नापसंद करते हो। याद रखिए मेरे भाइयों, नौजवान निकाह करता, सूद से मुतालिक बात चल रही थी, शुरू में खूब खिलाया पिलाया गमाया, ये किया वो किया, इतना कर्जा लिया, उसके बाद 1 साल तक चलो ठीक है, अब कर्जे की जो डिमांड शुरू हो जाती है, परेशान रहता है, यहां वहां कुछ करने की कोशिश करता, हलाल हराम कुछ भी हो जाए, अब घर बार की फिक्र नहीं है, घर में क्या हो रहा पता नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं है, अभी औरत भी परेशान रहती है। ऐसे लोगों को कुछ लोग वॉच कर रहे हैं और महिलाओं की एक जमात बना रहे हैं। हाँ, उसके बाद उनको कर्जा दे रहे हैं, कैसे? ग्रुप लोन दे रहे हैं। ग्रुप लोन लेने के बाद अब चंद दिनों तक लेने में अच्छा लगता है, और याद रखें नबी ने यह कहा, जो ज्यादा लोन में पड़ेगा, सूद में पड़ेगा, वो जलील और रुसवा होगा ही होगा। ये नबी का जुमला है मेरे भाइयों, जलील और रुसवा होगा। उसके बाद जब कर्जा बढ़ जाए, अब शौहर भी नहीं दे रहा, चंद दिनों अच्छा लगता, शौहर आ रहा, अच्छा मिल रहा खाने को, सुबह जा रहा, क्या हो रहा, कहां से ला रहा ही पता नहीं है। उसके बाद हालत ये है, इन औरतों पर अब जुल्म और उनके इस्तेहसाल हो रहा है। कैसे? अब पैसा दो, लेते लेते अच्छा लगा, दे नहीं पा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गलत काम की तरफ, गलत कार्यों की तरफ उनको ढकेल दिया जा रहा है। अगर पैसा नहीं दे सकते हो, जाओ वहां जाओ, यहां जाओ, ये करो वो करो। मैं बोल नहीं सकता मेरे भाइयों, आज मुस्लिम मुआशरे में, समाज में ये सूद की लानत की वजह से सारी बातें हो रही मेरे भाइयों। इसलिए हमें चाहिए, नबी ने बहुत पहले ये कहा कि देखो तुम इन सारी चीजों से परहेज और गुरेज करो, और खुलासे के तौर पर नबी ने कहा, जमाने जाहिलियत की हर चीज को मैंने रौंद दिया, दफन कर दिया है। वो जमाने जाहिलियत के जो तुम्हारी इलाकाई असबियत, खानदानी असबियत, सूद और इन सारी बातों को मैंने दफन कर दिया है। याद रखो, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, सिवाय तकवा और ईमान, यही अल्लाह के पास मतलूब है। इंसानियत का ये पैगाम इस्लाम ने दिया है, सब एक हैं, सारे इंसान एक है, जो जात पात छूत छात बिल्कुल इस्लाम में नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, यही असल पैगाम है इस्लाम का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर यह पैगाम दिया और ये कहा कि लोगों, तुम अपने मातहत काम करने वालों का ख्याल रखो, अपने गुलामों का ख्याल रखो, उनका पास लिहाज रखो, और उनके देखो आराम, कहीं उनके ऊपर काम ज्यादा ना हो जाए, और हो तो तुम ताउन कर दो, हेल्प कर दिया करो। फिर इसी तरह से याद रखो, तुम खवातीन का ख्याल रखो, खवातीन का ख्याल रखो, ये तुम्हारी इज्जत है, तुम उनको अल्लाह का नाम पढ़ के लेकर आए हो, खवातीन का ख्याल रखो। आज माशरे में ही खातून, याद रखिए, आज ये खातून जो इंसान
की इज्जत के जरिया हैं, आज उन्हीं से इज्जत नीलाम और बर्बाद हो रही है। ये खातून की वजह से याद रखिए, औरतें मर्द को आबाद भी करती हैं, बर्बाद भी करती है। आज माशरे में जरूरत है अच्छे खवातीन की। आज शौहर परेशान है खवातीन की वजह से, क्योंकि खवातीन के पास ये जज्बा ज्यादा होता है, कंपेयर करना, मुआजना करना, उनको इतना मिला, उनको इतना मिला, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आप अपनी तकदीर पे राजी रहो, आप अपनी तकदीर पर राजी रहो, शौहर के शुक्रगुजार बना करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात अभी आप सुने हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल के पास घर आए थे तो उनकी बीवी ने क्या किया? शिर्क किया, कुफ्र किया, बिदात खुराफात किए, अखलाकी कोई जुर्म किए, गलत अफेयर वगैरह किए? नहीं, क्या है? सिर्फ नाशुक्रापन। नाशुक्रापन अगर किसी औरत के अंदर है, याद रखो जिंदगी भर तुम कमाओ, आपको सुकून मिलने वाला नहीं है। नाशुक्रापन औरत के अंदर नहीं होना चाहिए। शुक्रगुजारी, शौहर का ख्याल रखो, शौहर के आराम का जिस हालत पे भी हो ख्याल रखो। याद रखिए इसी पे माशरे में सुकून आएगा, अमन और चैन है। क्योंकि याद रखिए जिनके घरों के खवातीन माशरे में सर झुका के बापर्दा चलती हैं, उन घरों के मर्द माशरे में सर उठाकर चलते हैं, और जिनके घरों के खवातीन माशरे में सर उठाकर बेपर्दा चलती हैं, उन घरों के मर्द माशरे में सर झुकाकर चलते हैं। याद रखो ये उसूल और ज़ाबिता है। औरतों से इज्जत है, और औरतें तुम इज्जत का जरिया बनो, और तुम खुशी का जरिया बनो, और तुम अपनी हिफाजत खुद करो, तब जाकर तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करेगा। तुम्हारी हिफाजत का जरिया तुम बनो। अगर तुमने सरेआम नीलाम कर दिया है, तुमने अपनी खजाने की हिफाजत नहीं किया है, तो अल्लाह ताला भी तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा। अगर तुम सरेआम बिकने लग जाओ तो याद रखो तुम्हारी कदर और कीमत नहीं होगी। और अगर तुम अपनी हिफाजत करो, मर्द तुम्हें पैसा देकर खरीद के लाने पर मजबूर होंगे। खरीदने का जुमला मैंने कहा ऐसे ही, लेकिन हकीकी माने में मजबूर होंगे ये, हाँ मजबूर होंगे। पैसा देकर भारी भरकम महर अदा करके वो लाने पर मजबूर होंगे। और अगर तुमने अपनी हिफाजत नहीं की, तुम्हें जहेज देकर तुमको बेचना पड़ेगा, जहेज देकर पैसा देकर तुम्हें बेचना पड़ेगा। माँ बाप परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं कि मैंने क्यों इस बच्ची को जन्म दिया। नौजवान लड़की है और उसकी फोटो के साथ, नाम के साथ, बाप के नाम के साथ सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर एक गैर के बच्चे के साथ उसका नाम, उसकी फोटो, बाप का सर क्या होता होगा, बाप के दिल पे से क्या गुजरता होगा। वो सोचेगा मैंने इसको जन्म क्यों दिया है। जवानी सब कुछ है, क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है, तवक्कुल नहीं है। अल्लाह ने आपकी जोड़ी बनाई है, याद रखो। और तुमने चंद टकों के फायदे के लिए, दुनिया के हिर्स हवस के लिए आप आखिरत को बर्बाद किए, खानदान के नाम को बर्बाद किए, माँ बाप की इज्जत को मिलेमेट कर दिए हो, और तुमने आखिरत को भी बर्बाद कर दिया है। याद रखो मेरे भाइयों, खवातीन तुम उनकी ख्याल रखो और खवातीन भी अपना ख्याल रखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा एक आलम मंशूर बताया, जिसमें सारा पैगाम, सारा मैसेज है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी पैगाम दिया, लोगों क्या मैंने पहुंचा दिया? सब ने कहा कि हाँ। अल्लाह के रसूल, अद्दैता व बल्लगता, आपने पहुंचा दिया, तबलीग की जिम्मेदारी आपने अदा कर दी है। नबी ने कहा तब एक काम करो, फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, यहां जो मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं उनको पहुंचा दो। नबी के सामने 1 लाख से ज्यादा मजमा था, और मक्का और मदीने में मुश्किल से 40-50 हजार की कब्रें मिलती है, सब मिला लिए जाए तो। मक्का मदीना मिलाकर बता रहा हूं, बाकी 50-60 हजार कहां गए? नबी आपके सहाबा 1,24,000 के करीब थे, बाकी कहां गए? वहीं से उन्होंने ये नहीं सोचा कहां जाना है, बस जिस तरफ गए, कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, हर तरफ निकल गया दीन की तबलीग के लिए। आज हम क्या दीन की तबलीग कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं? अल्लाह ने आपको यहां रखा है दीन की तबलीग के लिए है। ये जो 100 करोड़ गैर मुस्लिम है, उनको अल्लाह के बंदे बनाने और जन्नत का रास्ता दिखाने, उनके खैर खाई हमदर्दी के लिए आपको रखा है। इनको भी साथ में जन्नत लेकर चलो, दीन की तबलीग किया करो। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको उनके सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन सारे मुसलमानों की
جان مال عزت آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا. اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا. بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دینا. مقروضوں کی قرض کے لیے ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا. بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا. برسر روزگار لوگوں کو روزگاری میں برکت عطا فرما دینا. بے اولاد کو اولاد کا سہارا دے دینا. صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا. جو لوگ گھر بار کاروبار کے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما کے اللہ ان کو نجات دینا. جو زیر علاج ان کے علاج کو کامیاب بنا دینا. اللہ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان امان کے ساتھ رکھنا. خاتمہ بالخیر فرمانا اور کل قیامت کے میدان میں نبی کی شفاعت و رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کا اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.